Good morning, student. Welcome you all to TSN online classes. So today we will start the chapter number 2, The Sound of Music, from your book Behive. So this chapter is divided into two parts. The first part is Avril Gleamy, listen to sound without hearing it. And the second part is the Shehnai of Bismillah Khan. So first part we have already discussed, and line by line I explained you. Okay, so today we will start the second part, that is the Shehnai of Bismillah Khan. So here the Bismillah Khan, जब भी आप Bismillah Khan के बारे में आप लोगों ने कभी सुना होगा, of course आप लोगों ने सुना होगा, because he is a legend. Why do I say he is a legend? Because he did something which has historical significance. Because he played a Shehnai on the day India got independence, that is 15th August 1947 at the Red Fort, okay, in front of the Prime Minister. All right. So here आप लोग बहुत सारी images यहाँ पे देख रहे होंगे, बहुत सारी images हैं, और who is he? He is Bismillah Khan. ये जो image आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह खान की image है, and ये जितनी भी आपको सारी images दे रहे हैं, they have played a different instrument. Alright, जैसे ये तबला प्ले कर रहे हैं, ये शायद something फ्लूट जैसा कुछ है, ये प्ले कर रहे हैं, सितार कोई प्ले कर रहा है, तो ये डिफरेंट चीजें प्ले कर रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स रीड. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. So whenever we think about marriage or some auspicious occasion, तो हमारे दिमाग में शहनाई आती है. और जब भी अगर हम शहनाई के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले शहनाई वर्ड किससे हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं? वेडिंग से, या सब कुछ ऑस्पिशियस डे होता है, कोई ओकेजन होता है, उससे हम बहुत ही इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट वुड probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. So here the word maestro, see this word maestro. Maestro means क्या होता है? किसी चीज में आपने मास्टरी कर रखी हो, मतलब आपने PhD कर रखी हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो किसी चीज में, ठीक है, उसको maestro कहते हैं. तो here जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो maestro है किसमें? To playing the instrument like Shehnai. All right. So the first point, Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. So here, when the Mughal ruled India, before the Britishers came to India, all right. So वहाँ पे there was a very famous Mughal ruler, that is Aurangzeb. So here the Aurangzeb prohibited. So banned means prohibited. The instrument called pungi. So why did he ban pungi? Because pungi का जो sound था, pungi had a shrill or unpleasant sound. Shrill means very sharp, okay, और unpleasant means that is something not like. तो उसको जो म्यूजिक था और जो श्रिल म्यूजिक था उसको बेसिकली पसंद नहीं था, एम्पीरियर औरंगजेब को पसंद नहीं था. दैट्स द मेन रीजन ही बैन pungi. All right, pungi became the generic name for reeded noisemaker. So here the word reeded means wind instrument which have reeds like the flute, the clarinet, etc. So यहाँ पे रीड से मतलब ये है कि समथिंग कोई फ्लूट जैसा जो हॉलो हो, जिसमें बहुत मतलब हॉलो हो और जिसमें पॉइंट्स दे रखे हों, बहुत सारे होल्स कर रखे हों, राइट, उसे यहाँ पे रीड कहा गया है. और एक जेनेरिक नेम दे दिया है, ठीक है. जेनेरिक नेम किसको दे दिया है? पुंगी एक जेनेरिक नेम हो गया है कि इस तरह के जैसे फ्लूट है या कोई भी अदर जो रीड जैसा लगता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो उसे पुंगी ही कहा जाने लग गया. ऑल राइट.
So few had thought that it would one day be revived. तो सब कुछ लोग सोचते होंगे one day be revived means brought back to life. तो कुछ लोग सोचते हैं कि एक दिन तो ये वापस आएगा, मतलब जो पुंगी का जो दौरा है या पुंगी का जो एरा है वो वापस आएगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi. So as the pungi had an unpleasant sound, so there was a barber who belongs to a family of professional musicians. So he wanted to play the pungi, but he knew that the sound produced by the pungi was unpleasant. So at the end he decided to improve the sound of pungi. Alright, so बिकॉज पुंगी का जो टोनल मतलब जो क्वालिटी है, जो साउंड है म्यूजिक का, वो बहुत अनप्लीजेंट था. सो ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टैम्प्स दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. सो एट द एंड उसने क्या डिसाइड किया कि एक हॉलो पाइप लिया, ठीक है, एक स्टैम्प लिया, हॉलो किया उसको, और उसके अंदर कुछ 7 होल्स करे. उसकी जो पूरी पाइप थी बॉडी की, कुछ 7 होल्स करे. कुछ इस तरह से वो आप देख सकते हो, और इसमें उन्होंने कुछ 7 होल्स करे, कुछ इस तरह का पाइप के जैसा उन्होंने कुछ बनाया. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जैसे ही उन्होंने वो प्लेस किया, it produced a very melodious or soft sound. So he played the instrument before royalty and everyone was impressed. So when the barber played this instrument made by him na, so जो भी royalties थे, so everyone was impressed with this new instrument. The instrument, so different from the pungi, had to given a new name. So basically instrument बिल्कुल new था, different था pungi से. So इसका कुछ नया नेम तो देना ही था. So as the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by the Nai barber, the instrument was named the Shehnai. So basically Shah was the name given to King Mughals, called the king as Shah. मतलब उस टाइम पे शाह किसको कहा जाता था? किंग्स को कहा जाता था. So it was very first time played by the barber, तो that's why barber कौन? नाई. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो शहनाई है उसका नाम क्या रख दिया गया, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया गया जो न्यूली मेड थी बाय द बार्बर? शहनाई. बिकॉज हियर द फर्स्ट वर्ड शाह, शाह मीन्स किंग एंड नाई, द सेकेंड वर्ड इज नाई. नाई मीन्स बार्बर, तो शह नाई. तो बेसिकली शह स्टैंड फॉर शाह एंड नाई स्टैंड फॉर बार्बर. सो इसके बाद से इट्स वी नोन एज, सो इट्स बिकम शहनाई. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे पुंगी की भी पिक्चर दे रखी है और शहनाई की भी पिक्चर दे रखी है. आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो. पुंगी का जो स्टेम है देखा आपने कितना ये ऐसे लंबा सा है और इसमें 7 होल्स किए जा रहे हैं और हॉलो है, राइट. सेकेंड पैराग्राफ. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. तो हियर द वर्ड ऑस्पिशियस मीन्स promising to bring good fortune. means कि हमारा कुछ ऑस्पिशियस डे होता है, कुछ फेस्टिवल आप कह सकते हो, बहुत अच्छा दिन होता है, गुड फॉर्च्यून लेकर आता है, उसे ऑस्पिशियस कहते हैं. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of any North Indian wedding. So here the word indispensable means without which a piece of work cannot be done. मतलब इसके बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं, मतलब कोई ऑस्पिशियस डे पॉसिबल है ही नहीं. ऑलराइट, सो इसमें क्या बताया कि अगर आप नॉर्थ इंडिया की वेडिंग देखोगे, ठीक है, और आप नॉर्थ इंडिया की वेडिंग में आप क्या देखोगे, वहां पे अगर कोई ऑस्पिशियस डे होता है
और या मंदिरों में या टेम्पल्स में, ये तो कंपलसरी है कि वहां पे क्या बजेगा, शहनाई बजेगी। आप सुन सकते हो वहां पे शहनाई। द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. So here Naubat means it's ये आपके इस नाम से ही बहुत क्लैरिफाइड है कि नौबत means 9. Okay. So here the Shehnai was part of the Naubat of traditional ensemble. So here the word ensemble means इसे एग्जाम्पल्स नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ensemble. ऑलराइट, थिंक हियर इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। ऐसा एज अ ग्रुप, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एज अ ग्रुप काउंट करना उसे ensemble कहते हैं। ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो नौबत है जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट है, नाम से ही ये क्लियर है। तो वहां पे कहाँ पे होता था, ये रॉयल कोर्ट में प्ले होता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। और तब पहले ही कहाँ ओनली यूज होता था, टेम्पल्स और वेडिंग्स में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो अब क्लासिकल स्टेज पे ये कैसे पहुंचा, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, क्रेडिट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सी how did it reach the state? Because people gives performance with the shehnai. So इससे धीरे धीरे slowly किससे क्या होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, who was a legendary shehnai player, उन्हीं को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ही ये धीरे धीरे इस शहनाई को कहाँ लेके गए, स्टेज पर, एक क्लासिकल स्टेज पर लेके गए। ऑलराइट, as a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Damrao in Bihar. So now from here we start reading the story of Ustad Bismillah Khan. And when he was 5 years old, that time he used to play gilli danda. Is an old sport, quite similar to cricket. Alright, but it's not a क्रिकेट, मतलब थोड़ा बहुत क्रिकेट से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब उनके बचपन की बात हो रही है। व्हेन ही वाज 5 years old, तो कहाँ पे थे वो, गिल्ली डंडा खेलते थे नियर द पॉन्ड दमराव, जो बिहार में है। he would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaheta. So वो क्या करते थे, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो वो मुस्लिम थे, सेकेंड चीज़ कि वो बिहारी जी टेम्पल में जाकर भोजपुरी में चहिता गाते थे। ऑलराइट, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. And by the local Maharaja as a prize, उन्हें क्या दिया जाता था, he would earn 1.25 kg लड्डू, राइट, एज अ रिवॉर्ड उनको ये दिया जाता था जब वो क्या सिंग करते थे, चहिता। This happened 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब देखो ये जर्नी कहाँ से है, जब वो 5 years के थे, ठीक है, और तब उन्होंने क्या मिलता था उनको एज ए रिवॉर्ड 1.25 kg का लड्डू। ऑलराइट, और जब वो 80 years के हुए तो यहाँ से लेकर ये कितनी लॉन्ग जर्नी है जो उन्होंने कवर करी। ऑलराइट, तो उन्होंने पहले एज अ रिवॉर्ड उनको क्या मिलता था, लड्डू जो 1.25 kg का था, और जब वो मतलब ये जो डिस्टेंस इन्होंने कवर्ड किया एक बॉय से लेकर एक ओल्ड मैन तक का, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा एक सिविलियन अवार्ड उनको मिला, दैट इज द भारत रत्न अवार्ड। ऑलराइट, born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. So he was born in the family of musicians and he was born on
21st March 1916. कहाँ से थे ये? He belongs to Bihar. His grandfather Rasool Bucks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpuri King's Court. अब इनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम क्या था? रसूल बक्स खान, और वो कहाँ पे शहनाई प्ले करते थे? भोजपुर किंग्स कोर्ट में. एंड हिज फादर पैगम्बर बक्स एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. मतलब इनके फादर जो अदर एंसेस्टर्स हैं इनके, एंसेस्टर्स मीन्स एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, मतलब जो पुराने जो एंशियंट टाइम के जो इनके पैटर्नल एंसेस्टर्स हैं उनकी बात करें थी, तो वो सब क्या थे? शहनाई प्लेयर थे. तो वी कैन से हियर he acquired the skill of playing the shehnai from his paternal ancestors. All right. The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi. So अब इन्होंने जब when he was 3 years old, इनकी मदर इनको कहाँ लेके गई? इनके अंकल के पास, आप कह सकते हो मामा के पास, जो कहाँ थे? बनारस में. अभी क्या है उसका नेम? वाराणसी. सो बिस्मिल्लाह was fascinated. Bismillah was very much attracted, fascinated watching his uncle practice the shehnai. जब भी उसके अंकल शहनाई की प्रैक्टिस करते थे वो बहुत फैसिनेट होते थे, अट्रैक्ट होते थे. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras where Bucks was employed to play the shehnai. So जहाँ पे बक्स जाते थे विष्णु टेम्पल पे, वो प्ले करते थे शहनाई, एम्प्लॉयर थे वहाँ के. तो वहाँ पे उनके साथ कौन जाते थे? बिस्मिल्लाह जी जाते थे, उनको वॉच करते थे, उनसे सीखते थे. तो अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड. सो हियर द वर्ड कैप्टिवेटेड मीन्स अट्रैक्टेड. दिस वर्ड कैप्टिवेटेड मीन्स अट्रैक्टेड फॉर आवर्स ऑन एंड. सो वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे उसको देखकर, और पूरा टाइम उनको जब वो प्ले करते थे बक्स, और पूरा टाइम उनको वो देखते रहते थे और अट्रैक्टेड होते थे टुवर्ड्स हिम. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would still practicing throughout the day. Slowly वो खुद भी प्रैक्टिस करने लग गए और सीखने लग गए कि इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले किया जाता है. For years to come to the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. So here he अब क्या करते थे? वो मंगला मैया के मंदिर के पास और बालाजी टेम्पल के इधर नियर द बैंक ऑफ गंगा, जो बैंक ऑफ गंगा होती थी, गंगा के किनारे पर वो ये सब प्ले करते थे. एप्रेंटिस मतलब ट्रेनी और लर्नर कह सकते हो, अ यंग लर्नर. तो ये सॉलिट्यूड मतलब अलोन, लोनली, बिल्कुल अकेले होकर वहाँ पे शांति से बिल्कुल पीसफुली फोकस करते थे. किसमें? अपने इंस्ट्रूमेंट में प्ले करना सीखते थे. All right. So the flowing waters of the Ganga inspired him to improvise. So जो गंगा का वाटर होता है, ठीक है, वो उनको बहुत इंस्पायर करता था इम्प्रोवाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, एंड इन्वेंट rags that were earlier considered to be beyond the rags of the range of the shehnai. मतलब जो भी रेंज, कैसा कहा जाता था कि एक पर्टिकुलर रेंज है, एक लिमिट है शहनाई की, बट उन्होंने वो भी क्रॉस करी और उसके डिफरेंट कुछ अलग राग उन्होंने बनाए बिस्मिल्लाह खान जी ने. कहाँ पर? नियर द बैंक ऑफ गंगा. ऑलराइट. और बहुत मतलब डिफरेंट और इन्वेंट आप कह सकते हो, उन्होंने एक नई राग इन्वेंट कर दी और डिस्कवर कर दी. ऑलराइट. तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in our next video. Okay, so please keep learning and stay safe. Thank you.